Good morning, students. I hope you all are fine. Welcome back, you all, in a social studies class. Today, I'm going to start the new chapter, that is a chapter number 2 in geography, that is the natural resources, land and soil. Right? What is land? Land is a natural resource. Land क्या है? एक natural resource है of utmost importance to the human. Right? Land क्या है? एक utmost importance है man के लिए and the most living beings के लिए. राइट इट सर्व एज अ बेस फॉर द नेचुरल वेजिटेशन. लैंड हमारे लिए सर्व क्या करता है? एज अ नेचुरल वेजिटेशन की तरह बेस सर्व करता है एंड सर्व करता है हमारे को एज अ हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ के लिए. राइट लैंड सपोर्ट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. लैंड सपोर्ट करती है हमारे लिए हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, लाइक जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, द पेस्टल फार्मिंग करते हैं, जो हमें प्रोवाइड कराती है फूड एंड द मटेरियल फॉर आवर क्लोथिंग. हमारी क्लोथिंग के लिए जो मटेरियल प्रोवाइड कराती है. राइट लैंड समटाइम्स रेफर टू एज अ ड्राई लैंड. कई बार क्या होता है, लैंड रेफर करता है एज अ ड्राई लैंड की तरह. सूखा हुआ लैंड इज द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ. वो क्या होती है? सॉलिड सरफेस होती है अर्थ की. जो ड्राई लैंड होता है दैट इज नॉट परमानेंटली कवर्ड बाय वाटर. जो लैंड परमानेंटली कवर्ड नहीं होता वाटर से, दैट लैंड इज कॉल्ड द ड्राई लैंड. दैट इज कॉल्ड द सॉलिड सरफेस. जो अर्थ की सॉलिड सरफेस होती है वो. Right, the vast majority of human activity occurs in land area that supports agriculture. जो हमारी vast majority होती है human activities की vast majority है, वो कहाँ पर occur होती है? in land areas पे, जो support करती है किसको? agriculture को, habitat को and the various natural resources को. Right, तो land covers about 29% of the total area of the earth surface. land कितना total earth का जो surface area है वो कितना covered है land से? that is a 29%. right, सो द लार्ज पार्ट इज इनहेबिटेबल. जो लार्ज पार्ट है अर्थ का वो इनहेबिटेबल है बिकॉज क्यों बिकॉज ऑफ द अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी है जो अर्थ की एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन इन द फॉरेस्ट और डेजर्ट इंसेट्रा. राइट various landform and their utilization. Right, the utilization of land is determined by the physical factors like the relief, soil and the supporting the climate. Right, जो utilization of land है वो determine किससे करता है कि कौन सा land suitable है use के लिए? determined by the physical factors like the relief, soil and supporting climate. and human factors कौन कौन से? like the population का pressure, its density and the quality. Right, that is there the cultural and the technical ability and also determine the land utilization. the earth का जो surface है वो compromises करता है 3 main landforms से. right, कौन कौन से है? that is called the mountains, plateaus and the plains. right, these relief feature influence the life and the economic activities of man. ये सारे relief features जो है इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ को, द लाइफ एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है मैन की. जो रिमोट माउंटेन्स होते हैं विद डिफिकल्ट टेरेन, वहाँ पर अनइवन प्लेट्यू सरफेस होती है, डेजर्ट्स हो गए एंड द स्वैम्पी लैंड मेक्स अ लिवलीहुड डिफिकल्ट. भी हमारे लिए परेशानी हो जाती है वहाँ पर अपना सर्वाइव करना. राइट, माउंटेन्स टाइप एंड टेरेरियन पर, अनइवन प्लेट्यूज पर, डेजर्ट्स पर. राइट, and their land use is limited and hence they are sparsely populated. On the other hand, broad low-lying plains drained by rivers, example the Indo-Gangetic plains हो गए, provide कराते हैं हमारे को opportunities agriculture के लिए and settlements के लिए. right, thus the plains are densely populated. plains क्या होता है? densely populated regions हैं पूरे world के. right, तो plains का part कितना covered है? 43%, mountains 30% and the plateaus 27%. right, land use. Land is used for different purposes such as cultivation of crops, forestry, grazing, livestock, construction of buildings, houses, canals and for mining and manufacturing. This different uses is referred to as a land use. land किसके लिए यूज होती है? different purposes के लिए यूज होती है. such as हम cultivation के लिए यूज करते हैं, क्रॉप उगाते हैं ना, फार्मिंग करते हैं हम. राइट, फॉरेस्ट्री के लिए यूज होती है, ग्रेजिंग के, लाइफ स्टॉक जो हम घर में भेड़ बकरी पालते हैं. राइट, उनके लिए चारा कहाँ से आता है? लैंड के ऊपर जो उगाते हैं वहाँ से आता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हम बिल्डिंग किसके ऊपर बनाते हैं? लैंड्स के ऊपर बनाते हैं. हाउसेस बनाते हैं, कैनाल्स एंड फॉर माइनिंग के लिए भी यूज होता है. राइट, एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इंडस्ट्रीज वगैरह भी उसके ऊपर एस्टेब्लिश करते हैं लैंड के ऊपर. दीज डिफरेंट यूजेस इज रेफर टू एज अ लैंड यूज. ये डिफरेंट तरह के जगह पर डिफरेंट फॉर्म में हम यूज करते हैं लैंड को, उसको हम क्या बोलते हैं? रेफर टू एज अ लैंड यूज. राइट, लाइक दैट इन अ पिक्चर आपके पास है, देखो हम फार्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं लैंड को, फॉरेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड के लिए यूज कर रहे हैं. राइट,
हम लैंड को बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? बिल्डिंग बनाते हैं लैंड के ऊपर ना, कैनाल्स एंड माइनिंग. अब माइंड में क्वेश्चन अराइज करा होगा, माइनिंग क्या होता है? माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज आर कनेक्टेड विद द लैंड. वी माइन द मिनरल्स फ्रॉम द लैंड. हम क्या करते हैं? माइन, खुदान बनाते हैं जहाँ से माइन करते हैं हम मिनरल्स, राइट, फ्रॉम द लैंड एंड बिल्ड द इंडस्ट्रीज. फिर इंडस्ट्रीज बनाते हैं लैंड के ऊपर विद प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द प्लांट. वी बिल्ड अदर शेल्टर्स एंड द हाउसेज भी बनाते हैं लैंड के ऊपर विद मटीरियल वी ऑब्टेन फ्रॉम इट. One more thing, depending on the quality, the land may be productive. डिपेंड करता है लैंड की क्वालिटी के ऊपर, वो लैंड प्रोडक्टिव भी है एंड इन्वॉल्व इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. वाइल अ पार्ट ऑफ अ लैंड, कुछ ऐसा पार्ट होता है लैंड का जो अनप्रोडक्टिव होता है, जो हमारे लिए इन्वॉल्व नहीं होता इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, राइट? दैट मे बी लाई एज अ वेस्ट लैंड, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट लैंड और बैरन लैंड जिसे बोल देते हैं, राइट? द पैटर्न ऑफ द लैंड यूटिलाइजेशन इज टर्म्ड एज अ लैंड यूज. जो पैटर्न है लैंड यूटिलाइजेशन का वो टर्म्ड एज करता है लैंड यूज को, राइट? नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंड यूज. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं लैंड के यूज को? फिजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक एंड द ह्यूमन फैक्टर. फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है? टोपोग्राफी कैसी है लैंड की, सॉइल की, क्लाइमेट, water, distribution of rocks and minerals. These are called the physical factor that affecting the land use. And what are the economic and the human factors that are called that are पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वहाँ का, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी वहाँ पर कैसी है, लैंड का टेन्योर कैसा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है उस लैंड से रिलेटेड, राइट? दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंड यूज. Land can also be divided on the basis of the private land and the community land. Land को divide किया गया on the basis of private land and the community land. Right? What is private land? Private land owned by the individuals, whereas the community land is owned by the community for the common users. Right? Private land जो होता है वो own कौन करता है? Individuals करते हैं. जैसे हम लोग private land है, हमारा घर अपना है, अपनी ज़मीन है हमारी, जब हम उस पर जो मर्जी उगाएं या ना उगाएं. Right? Whereas the community land जो होता है वो owned by the community. जो community ऑन करती है लैंड, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, कोई सोसाइटी होगी लाइक दैट, उसका हो गया लैंड, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी लैंड फॉर द कॉमन यूजर्स. वो कॉमन यूजर्स के लिए रखते हैं उस लैंड को, लाइक दैट द कलेक्शन ऑफ द फॉडर के लिए, फ्रूट्स के लिए, नट्स के लिए एंड द मेडिसिनल हर्ब्स के लिए. These community lands are also called the common property resources. हम इन community lands को क्या बोलते हैं? common property resources भी बोलते हैं, right? Change in land use over a time. बहुत सारे लैंड यूज में चेंज आ जाता है जैसे जैसे टाइम बीतता है. पीपल एंड द डिमांड आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड. हमारी जो डिमांड है लोगों की और हमारी जो डिमांड है वो दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है, राइट? कुछ ना कुछ एडिशन ही होता जा रहा है हमारी डिमांड्स में, बट जो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जो लैंड है हमारे पास अवेलेबल है वो तो लिमिटेड ही है, राइट? पीपल स्टार्टेड enriching the common lands to build up the commercial area, housing complexes in the urban areas and to expand the agriculture land in the rural area. राइट? लोगों ने क्या करा है? अपने कॉमन लैंड्स को यूज अप कर लिया. किसके लिए? टू बिल्ड अप द कमर्शियल एरिया. अब हम उसे कमर्शियल एरिया बनाया जा रहा है. कमर्शियल एरिया मीन्स अपने पैसा कमाने के लिए प्रोडक्टिव लैंड बना रहे हैं उसको, उस पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं. हम हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं अर्बन एरियाज में. एंड टू एक्सपेंड, हम एक्सपेंड करें अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी इन रूरल एरियाज के अंदर, राइट? लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, soil erosion, desertification are the major threats to the environment because of the expansion of the agriculture and the construction activities. Land degradation हो गया, right? Landslide, soil erosion, desertification, ये क्या एक मेजर थ्रेट्स है हमारे इन्वायरमेंट के लिए. क्यों? क्योंकि बिकॉज हमने क्या कर लिया, अपना एग्रीकल्चर लैंड को एक्सपेंड कर लिया और अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एक्सपेंड कर ली हैं, राइट? फॉरेस्ट को हम डिप्लीट करते जा रहे हैं डे बाय डे और हम उसे रूरल एरिया को अर्बनाइज करते जा रहे हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, राइट? जो अफेक्ट कर रहा है हमारे लैंड को एंड इन्वायरमेंट को भी साथ साथ बहुत अफेक्ट कर रहा है. In addition to the usual type of land degradation that have been known for the centuries से चलता आ रहा है, that is water, wind and the mechanical erosion हो गया, physical and the chemical and the biological degradation. 4 other types have emerged जो हो गया हमारे last 50 years के अंदर. फर्स्ट क्या है? पॉल्यूशन. हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं ड्यू टू द एग्रीकल्चर के अंदर, हमें बहुत सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रीज से, माइनिंग से एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो हम केमिकल की यूज़ करते हैं उससे बहुत अफेक्ट हो रहा है. लॉस ऑफ अरेबल लैंड हो रहा है, लैंड ड्यू टू द अर्बन कंस्ट्रक्शन. हम अर्बनाइजेशन करते हैं रूरल एरिया लैंड को. एंड द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटीज़
कर रहे हैं हम, समटाइम द एक्सीडेंटल होती हैं वो बहुत. Land use constraint associated with the armed conflicts. Overall, the 36 types of land degradation can be assessed, right? All are induced or the aggravated by the human activities like the sheet erosion, silting, aridification, salinization, urbanization, right? Etc. लैंड डिग्रेडेशन इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. लैंड डिग्रेडेशन क्या है? ग्लोबल प्रॉब्लम है, लार्जली रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर यूज से रिलेटेड. द मेजर कॉजेज इंक्लूड लैंड क्लियरेंस सच एज क्लियर कटिंग एंड द डिफॉरेस्टेशन. हम पूरे पेड़ काट देते हैं, पूरा लैंड को बैरन कर देते हैं, खाली कर देते हैं, पूरा कटिंग कर देते हैं. डिफॉरेस्टेशन के जा रहे हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिफॉरेस्टेशन. एग्रीकल्चर डिप्लीशन ऑफ द सॉइल न्यूट्रिशन थ्रू द पुअर फार्मिंग एक्टिविटीज़. हम पुअर फार्मिंग एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करते हैं क्रॉप को जल्दी उगाने के लिए. हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, राइट? अपनी क्रॉप के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं अपनी सॉइल के अंदर क्रॉप को अच्छे से अच्छा उगाने के लिए, और शॉर्ट पीरियड के अंदर हम एक अच्छी क्रॉप उगा पाएँ. इसलिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए तरफ नहीं जा रहे हैं. इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक हम कहाँ जा रहे हैं? इनऑर्गेनिक पर जा रहे हैं. लाइफ स्टॉक इंक्लूडिंग द ओवरग्रेजिंग, हम ओवरग्रेजिंग कर रहे हैं लाइफ स्टॉक सी, एंड ओवर ड्राफ्टिंग, inappropriate irrigation and overdrafting. These all are the causes. अर्बन स्पाउल एंड द कमर्शियल डेवलपमेंट हो गया. हम ज़्यादा से ज़्यादा हम अर्बनाइज एरिया करते जा रहे हैं, कमर्शियल डेवलपमेंट करते जा रहे हैं. सॉइल कंटामिनेशन, व्हीकल ऑफ रोडिंग एंड द क्वेयरिंग ऑफ स्टोन्स एंड minerals. Increase in the field side due to the economics of scale, reducing the shelter for the wildlife, right? Dumping of non-biodegradable trash such as the plastic. These all are the causes. Now, conservation of land resources, right? According to the Natural Resources Management Division, Department of Agriculture and the Cooperation Ministry of Agriculture, Government of India, we can conserve our land resources by adopting the following measure, right? Afforestation means planting of more trees can help a lot in conserving the soil. The roots जो होती हैं trees की वो bind करके रखती है soil को और prevent करती है soil erosion. So afforestation क्या possibly best or the easiest method है soil conservation के लिए, right? Now the agriculture activities adopted for the soil conservation. उसमें क्या क्या हम इन्हें agriculture techniques adopt करनी चाहिए? That is a terrace farm, terrace cultivation, or we can say that the terracing method. In hilly areas, it can check the soil erosion, right? It is common practice. ये common practice है in all the highlands पर of the world के steps are cut along the slopes and their edges are bundled. This, a part of providing a more land for the cultivation, also prevents the washing away of the soil nutrients along the slope. Contour plowing, second one, इसमें involve होता है farming along with the contour lines horizontal around a hill rather than plowing up and down the slope. This reduces the flow of water and checks the soil erosion, right? Strip cropping. This involves a planting a strip of grasses in between the crops to break the force of wind. Planting shelter belts. By planting trees in a row, the force of the wind can be checked. This also prevents the spread of the desert and help in disaster management in cyclone-prone areas, right? And the crop rotation, this is done with the objective of maintaining the soil fertility. Different crops are planted in rotation to successfully balance the soil nutrients. Planting of leguminous crops for the nitrogen fixation is a common with that routine. Mulching or covering the empty grounds between the rows of plants with a straw or the other organic matter can help to retain the soil moisture. Creating a contour barrier along the slopes with the rocks, stones, soil, etc. that can check the flow of water and reduce the soil erosion. Other methods of the soil conservation includes preventing of overgrazing, construction of dams to control the flooding and to check the soil erosion.
The most important approach to conserve the soil is to make people aware of its need by distributing the bulletins and training the farmers. So students, you can revise these topics of this chapter which I have discussed with you today. And if you have any query, you can concern to me. Thank you and have a nice day. And one more thing students, those who have not subscribed the channel, subscribe the channel please. Thank you.